With this video, I am starting a new series on Vlogish, a series on the case of Keshwananda Bharti versus State of Kerala. This is my promise to you in the beginning of this video that this will not be just another series on this most amazing, the most famous case of all times in India. बल्कि ये एक ऐसी वीडियो होगी, मेरा प्रॉमिस है, जिससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत सारी नई चीज़ें, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि इंटरनल चीज़ें, एनेक्डोट्स, ये सब भी आपके सामने लाई जाएंगी। और इसको देखने के बाद आपको डेफिनेटली लगेगा कि ओ येस, दिस साउंड्स लाइक द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ वीलॉगिश। मेरा बहुत मन है कि एक केस क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है हर एक इंडियन सिटीज़न के लिए, इनफैक्ट ना ही सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स या लॉ से जुड़े लोगों के लिए, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं इस केस से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आप सबके सामने लाऊं ताकि हम इंटेलेक्चुअली ग्रो कर सके साथ में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सीरीज ऑन द केस ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट ईशा कपूर एंड यू आर वाचिंग Vlogish. This first video has to be on this one important question, very important question. Why this series? Why should I read this case? What is so important in Keshwananda Bharti that I should go beyond my class notes or my books or what I have heard through the news channels to study this case in depth? Why do I need to go there? Hi CLAT aspirants, I know I'm disturbing you in the middle of this video, but this is extremely important. If you are preparing for the CLAT exam or any other law entrance test, then you already know what is the importance of preparing in a structured manner. And in case you are preparing in a structured manner all by yourself or even after taking help of any institute, any specialized coaching, then you already know the importance of including mock tests and regular test series in your preparation plan. For CLAT, Unacademy has also come out with these kind of mock tests for almost every exam related to the law field. Not only they have various batches, but they have various exams, these test series that are conducted every week, and these are absolutely free of cost. In case you want to check out what these tests look like, you can go into the description box and click on the link which is given there to see what all is there on the Unacademy's app, on the Unacademy's website. The app is so amazing for all the aspirants that it will help you prepare in a way in which you would not even have thought of. So I would suggest at least give a test once and see if Unacademy helps you in any way. And in case you decide to take Unacademy's help, then I'd recommend you to take the Iconic subscription. First, I'd recommend you to take the subscription for 3 months or 6 months and discover all the batches that they have. Only then you will be able to realize if you really need the help. The reasons are many, but I have made an attempt here to list down 6 reasons for you to convince you to read this case, to watch this series, and to get to know about what is the most important development in the history of India, in the history of this nation. Zia Modi from AZB and Partners, a very successful advocate, a talented entrepreneur, and who also happens to be the daughter of Mr. Soli J. Sorab ji. सोली जे सराब जी ने नानी पालकीवाला और बहुत सारे एमिनेंट लॉयर्स को असिस्ट किया इन द केस ऑफ केशवानंदा भारती, फ्रॉम द साइड ऑफ केशवानंदा भारती, ऑफ कोर्स फ्रॉम द साइड ऑफ रिट पिटिशनर। जिया मोदी ने एक बुक लिखी जो आजकल बहुत ही फेमस है, काफ़ी लोगों ने पढ़ी भी होगी, 10 जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया। इन दैट बुक शी कॉल्स केशवानंदा भारती एज वन ऑफ दोज केसेस दैट्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंटिल टुडे। सिर्फ वो ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में आपको थ्रू आउट दिस वीडियो पता लगता रहेगा, जो आपको बोलते हैं कि आप अगर इंडियन सिटीजन भी हो तो आपको इस केस के बारे में जानना मिस नहीं करना चाहिए। इफ़ a decision is one of the most monumental decisions in the history of the Indian Supreme Court, then why should we not read it? Why should we not get to know about it? First reason is fundamental. Why is it fundamental? Because this was that case which gave strength to your fundamental rights, though they existed since the Constitution came into existence, but their existence was in danger. It was in danger of being controlled. इस केस के बाद में ही आपके फंडामेंटल राइट्स को इतनी स्ट्रेंथ मिली, इतनी पावर मिली कि आज उसको कोई भी यूं ही आके क्वेश्चन नहीं कर सकता। कहते हैं ना, कोई भी जड़ा खड़ा आके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को छू के भी नहीं दिखा सकता आज। वाई? बिकॉज ऑफ द गार्जियन एंजल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट। एक रीज़न और मैं मानती हूँ। दूसरा रीज़न मैं आपसे कहूँगी कि क्योंकि इस डिसीजन को
आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने डिलीवर किया था। 13 जजेस सैट टुगेदर टू डिलीवर देयर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस एस्पेक्ट। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होगी। घर में भी अगर 4 लोग घर के या 10 लोग एक साथ बैठ के किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं तो वो कितना फंडामेंटल और मॉन्यूमेंटल डिसीजन होता होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस एक साथ बैठ के किसी चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं तो सोचो कितने इंपॉर्टेंट इशूज़ आए होंगे उसमें। और सभी जजेस ने अपनी अपनी सेपरेट ओपिनियंस भी डिलीवर करी और हर एक ओपिनियन को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओपिनियन का भी क्रिटिसिज्म है। इस सीरीज़ में आपको शुरू से लेकर अंत तक कि इन जजमेंट्स का, इन ओपिनियंस का क्या क्रिटिसिज्म रहा, वहाँ तक मैं आपको लेके जाऊँगी। थर्ड रीज़न, ये जजमेंट बहुत वॉल्यूमनस है। अब बोलोगे कि वॉल्यूमनस है तो इसमें हमें इतना क्या जानने की ज़रूरत है। बहुत सारी किताबें, हज़ारों पेजेस की ट्रीटीज़ लिखी गई हैं, लाखों पेजेस आज तक लिखे गए हैं। क्या हमें हर वॉल्यूमनस चीज़ को पढ़ना चाहिए? ऐसा नहीं है। बट in the history of Indian Supreme Court, in the history of Indian laws, since the country has came into existence, आज तक कभी एक लगभग 800 पेजेस की जजमेंट तो नहीं लिखी गई है किसी केस में। इतना क्या था कि उसमें 800 पेजेस तो लिखे गए। इन 800 पेजेस में वो डॉक्यूमेंट्स और एविडेंशरी प्रूफ्स, वैल्यू एविडेंसेस, ये सब चीज़ें और डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये खुद जजेस ने बैठ के अपने हाथों से लिखे हैं। क्या उन्हें इस तरह से लिखना पड़ा कि एक तरह से इस केस में इंडिया का आधा जूरिस्प्रूडेंस समा गया? क्यों ऐसा करना पड़ा, ये जानना तो बहुत ज़रूरी है ना। और अगर कहीं पे किसी ने 4,20,000 वर्ड्स, 4,20,000 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली लिखे हैं तो एक बार देख लेते हैं चल के कि ऐसा क्या उसमें लिख दिया गया है। फोर्थ रीज़न विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इक्वली सैडनिंग, द गवर्नमेंट, द पीपल इन पावर were trying to take undue advantage of their position even before they had come into existence fully। पांचवा रीज़न जो मैं कहूँगी, पार्लियामेंट की पावर्स को यहाँ पे क्वेश्चन किया गया। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे एज अ न्यूली मेड नेशन, एज अ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, हमें फ्रीडम मिली थी। हम बहुत एक्साइटेड थे, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हम अपने तरीके से ज़िंदगी जिएंगे, हमारे पास एक पार्लियामेंट होगा जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, गार्ड करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन जैसा एक डॉक्यूमेंट तो है ही जिसने लिख दिया है कि आप सब गार्ड करेंगे, जो हमने खुद के लिए ही खुद को बना के दिया है। पर इवन बिफोर द पार्लियामेंट कुड फुल्ली कम इन टू एग्जिस्टेंस, जब अभी तो प्रोविजनल पार्लियामेंट ही चल रहा था, पार्लियामेंट की पावर्स को लिमिट करने की बात करने लगे। इस केस से आपको ना ही सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में बल्कि आप उन प्रिंसिपल्स को भी समझ पाओगे जो कि ये कहते हैं कि लिमिटलेस पावर कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और यहाँ तो मैं मानती हूँ पावर पूरी तरह से लिमिटलेस थी भी नहीं, बस पावर पे थोड़े से कैप्स लगाने रह गए थे। जब वो इतनी सी भी वो लीकेज बची थी तो किस तरह से वो नेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करने लग जाती, वो जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये केस नहीं हुआ होता, द सिचुएशन टुडे वुड हैव बीन रियली डिफरेंट। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दिस फैक्ट। द क्वेश्चन इन दिस केस itself was, I mean one of the questions in this case itself was whether Parliament has unlimited powers to amend the Constitution, and those powers included the power to change the entire constitution or to revoke the constitution। हम तो नहीं मानते इसे, हम तो अपना ही बनाएंगे क्योंकि हम पार्लियामेंट हैं। हम तो फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज कर सकते हैं और हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स यानी कि बहुत बात होती है ना इन बेसिक फीचर्स की कि ये तो कुछ चीज़ें बेसिक है, इनको नहीं बदला जा सकता है, तब तक ये चीज़ नहीं थी। The political circumstances were unique. I'd say they were really difficult at the time. We were at a nascent stage of politics. We were a new nation. We had no idea how to deal with all of that which was going on. Our leaders could have surpassed the freedoms, but there were other people, there were other leaders, there were other authorities that were made by our holy constitution itself, जिनकी वजह से इन सारी पावर्स पे चेक रखा गया और हमें ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट मिल पाई। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हो गया। अगर ये माना जाए कि कुछ चीज़ें किस्मत से होती हैं तो मैं बोलूँगी कि हाँ, ये केस पढ़ के, इसके फैक्ट्स जान के शुरू से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें किस्मत से होती हैं।
अगर नानी पालकीवाला केशवानंदा भारती के सामने ना आए होते, अगर उनको किसी ने इंट्रोड्यूस ना करवाया होता, या फिर अगर सारे ही लॉयर्स ने मना कर दिया होता इस केस को टेकअप करने से, तो क्या होता? या अभी मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ में आगे जाके बताऊंगी कि जब ऑलमोस्ट एंटायर हियरिंग कंक्लूड हो चुकी थी तो एक ऑनरेबल जज फेल इल। अगर उनकी इलनेस की वजह से कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस हमारे सामने होता तो क्या होता? क्या जजमेंट डिले होती? क्या जजमेंट में कोई चेंज आता? क्योंकि आपको पता है कि ये जजमेंट को बहुत ही माइन्यूट सी मेजॉरिटी से डिक्लेयर किया गया था। एनीवे, द लास्ट of reasons for which I think you should read this judgment in depth is because of the involvement of goat lawyers. ये टर्म यूज़ करते हैं ना हम आजकल बहुत सोशल मीडिया की दुनिया में, और वैसे भी कितना फेमस अब्रीविएशन है गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। यहाँ पर तो लिटरली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। और आपको जान के शायद थोड़ा सा शॉक भी लगे या आप सरप्राइज भी हो कि ये गोट लॉयर्स में से काफ़ी सारे इनिशियली तो बहुत रिलक्टेंट थे इस केस को लेने के लिए। मुझे लगता था कि शायद इतना कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, वाई शुड बी टेक इट, मोर ओवर देयर वाज नो फंडिंग इन द बिगिनिंग, नन ऑफ देम न्यू कि इतनी सारे फंड्स बाद में आएंगे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इसे फंड करेंगी बाद में। तो इनफैक्ट सिर्फ केशवानंदा नहीं, केशवानंदा के पास तो इतने फंड्स नहीं थे लगाने के लिए, वो एक मट को ही चलाते थे, बट बाद में बहुत सारी कंपनीज, कोल माइनिंग, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स आगे आए फंड्स देने के लिए इसके लिए। और अगर एंटायर टीम ऑफ दीज गोट लॉयर्स वॉज स्टेइंग एट द ओबराय होटल इन दिल्ली फॉर अ टोटल ऑफ 68 to 70 डेज, तो आप मान सकते हो कि कितने ज़्यादा फंड्स लगे होंगे और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए होंगे केस में। बट इन फैक्ट दैट्स मैटर टू बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो इन दिस सीरीज़। बाकी जो गोट लॉयर्स थे उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देती हूँ। नानी पालकीवाला माई फेवरेट, आई थिंक योर फेवरेट टू। देन MC चागला जो कि जज भी रहे हैं, CK दफ्तरी जिनके नाम पे सुप्रीम कोर्ट में चेम्बर्स हैं, जिनके नाम पे बिल्डिंग्स हैं, उन लोगों को हम कैसे भूल सकते हैं। फिर मैं नाम लूँगी अनिल दीवान, जो मुझे याद आते हैं। अगर आपको अनिल दीवान नहीं आप याद कर पा रहे तो आई एम श्योर दोज हु आर एसोसिएटेड विद सुप्रीम कोर्ट दीज डेज दे नो सीनियर एडवोकेट मिस्टर श्याम दीवान। श्याम दीवान के फादर मिस्टर अनिल दीवान हैं, और अनिल दीवान भी एक ऐसी फैमिली से कनेक्टेड है, मतलब कि उनके जो मामा थे, उनके मेटर्नल अंकल इनफैक्ट, वो फर्स्ट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। MC सेतलवाद की बात कर रही हूँ मैं। फिर सोली सोराब जी, उनको कौन नहीं जानता, मैंने उनकी बेटी की बुक से, यानी कि जिया मोदी की बुक से ही इस वीडियो को बनाने के लिए इंस्पिरेशन भी ली है, और उसी से मैंने इसे स्टार्ट भी किया था। मैंने आपको बताया था कि वो AZBN पार्टनर्स को रन करती हैं आजकल। फिर DM पोपट, ML भक्ता, रविंद्र नारायण, JB दादाचंद जी। दादाचंद जी इनफैक्ट प्लेड अ वेरी क्रूशल रोल, क्योंकि इनिशियली केशवानंदा को उनके लॉयर तक पहुंचाने का रोल भी उनका ही था एक तरह से। तो ये सब सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसको बहुत टेम्पटिंग ना लगे अब इस केस को आगे जानने के लिए आगे जाना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, आई थिंक यू शुड वेट for the next video that will come very soon in this series on the केशवानंदा भारती केस। अगर कोई है जिसको आप जानते हैं जो इस केस के बारे में जानना चाहता था, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, वो स्कूल स्टूडेंट है, वो लॉयर है, या वो कोई और है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद दैट पर्सन। क्योंकि मेरा ये भी प्रॉमिस है आपको कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होगी जो एक्सट्रीम लॉ की टर्मिनोलॉजीज़ और टर्म्स को जानते हैं, समझ सकते हैं, बल्कि उनके लिए भी जो आम भाषा यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल वर्ड्स में किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। आई विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन दिस सीरीज़। बाय फॉर नाउ।